Hello everybody, today we will discuss about the wind displacement law or the Wind's law और इसके बारे में हम पढ़ेंगे और रिले जीन्स लॉ भी पढ़ेंगे. We will study about the relay Jeans law and it is just like that. According to Wind's displacement law or the Wind's law, that is at a given different temperature, the wavelength of a black body radiation lambda max is inversely proportional to its absolute temperature, and when we illuminate this proportionality sign, this gives the B upon T lambda max. This will take on the left hand side, this will be lambda max into T is equal to B. यहाँ आप देखेंगे कि ये जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ जो लाइट इंटेंसिटी की होती है, जैसे आप देखना चाहें तो यहाँ वेवलेंथ है, T टेम्परेचर है इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर और B जो है कांस्टेंट वैल्यू है. यही बताते हैं विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के. जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो B आता है. B की वैल्यू जो है वो है कांस्टेंट है विच इज़ इक्वल टू 2.89 +3 मीटर केल्विन. और इसने ये बताई कि जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे वेवलेंथ घटती चली जाएगी. जैसे ये ग्राफिकली अगर आप देखना चाहें ये इंटेंसिटी कर्व है. दिस इज वन साइड आई विल ड्रॉ फॉर द इंटेंसिटी रेडिएशन intensity, one side is wavelength lambda. ये वैल्यू है आपकी वेवलेंथ पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और यहाँ पर जैसे टेम्परेचर यू आर मेजरिंग मैक्सिमम पीक आपकी आएंगी T1 टेम्परेचर पे. और जैसे ही आप अगर T2 टेम्परेचर करते हैं ये कर्व तो ये घट करके इधर आ जाएगा. दिस इज T2 टेम्परेचर और इसका भी मैक्स आएगा इस तरीके से. ये फिर T3 टेम्परेचर फिर टेक फिर और डिक्रीज होगा T3 मैक्स वैल्यू. ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम टेम्परेचर वैल्यू. तो ये क्या आ रहा है कर्व आपका इस तरीके से आ रहा है. अगर आप गौर से देखें तो ये किस तरीके से आ रहा है, स्लोप में आ रहा है, ऐसे स्लोप. ये तो ये स्लोप जो है कंटिन्यूसली डिक्रीज है जब हायर टेम्परेचर T1 इज़ हायर टेम्परेचर देन T2 T3 ए से भी बड़ा है. सबसे बड़ा T1 फिर T2 T3. यानी जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इधर ये टेम्परेचर बढ़ा तो वेवलेंथ इस साइड घटी, फिर अगर टेम्परेचर घटा देंगे तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी. वेवलेंथ बढ़ रही है तो यही विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ बताता है हमको. नेक्स्ट है रिले जीन्स लॉ. उसे हम ऐसे तरीके देखते हैं. इन इंग्लिश दिस विंड्स लॉ स्टेट दैट इट्स the maximum wavelength which is coming out from the black body radiation is inversely proportional to absolute temperature, and when you illuminate this proportionality sign, that is B will come. B value is 2.83 × 10³ meter per Kelvin. It is shown in an example of this. This is the intensity curve showing with drawn with the wavelength, and the C1 is the temperature of higher than T2 then T3. T2 is middle of T1 and T3, and T3 is the least temperature. So when we increase the temperature, that means we observe that the peak is on the left, and if we decrease the temperature, it's again the wavelength, that means continuously increasing. In the similar manner, if the temperature decrease, the wavelength further increase. This show that the wind's displacement is correct for wavelength what we are observing.
Now for the Rayleigh-Jeans law. Rayleigh-Jeans law. Rayleigh-Jeans law. Rayleigh-Jeans law, he calculated for energy intensity for electromagnetic radiation in a cavity and hence the emission spectrum of the black body radiation. See, suppose there is a black body radiation is there in a cavity. He considered that each cavity is having equipartition energy and mode of having vibration, fixed vibration of intensity of a kb. K is Boltzmann constant, T is the temperature of a body, and according to the equipartition of energy, what it said that each mode of vibration is assigned to this much kb, and so the number of vibration per unit volume in a wavelength plus d lambda and d lambda, that is given by 8 pi lambda raised to minus 4 d lambda, and the vibration energy per unit volume in a given wavelength is given by u lambda d lambda kb t 8 pi this are already written, that lambda is for 4 d lambda. This law is valid for longer wavelength, but it is failed for a shorter wavelength. Just for a shorter wavelength is this one which I drawn. Shorter wavelength is this one, and this is valid for higher wavelength. Now Hindi I can explain. This means Rayleigh-Jeans ने ये कंसिडर करा कि एक ब्लैक बॉडी है और इसका हर एक पार्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में है, तो अकॉर्डिंग टू इक्विपार्टीशन थ्योरम हर एक पार्ट जो मोड वाइब्रेशन का है वो kb से वाइब्रेट करेगा, और हर एक की जो एनर्जी असाइन करी जाएगी इक्विपार्टीशन थ्योरम से बताता है लैम्डा प्लस डी लैम्डा की जो होगा उसमें हर एक की जो एनर्जी असाइंड होगी टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम जो आगे पर यूनिट इन अ रेंज ऑफ लैम्डा प्लस डी लैम्डा इज गिवन बाय 8 पाई लैम्डा रेज़्ड टू पावर 4 डी लैम्डा, यानी टोटल वाइब्रेशन हम निकाल सकते हैं ये पर यूनिट वॉल्यूम के लिए। तो अगर टोटल बॉडी का निकालना है तो ये वैल्यू रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ इसने ये बात बताई कि अब पहली बात तो मोड ऑफ वाइब्रेशन होता क्या है। मोड ऑफ वाइब्रेशन यानी कि ये जो मैंने पूरी लाइन ड्रॉ करी है इसका हर एक पार्ट जो है वो कंसिडर किया जाएगा एक डॉट, और डॉट जो है हर एक का वाइब्रेशन, जैसे कि अगर एक बॉल है वो एक्स में मूव कर सकते हो, मोड ऑफ वाइब्रेशन इतना होगा। अगर 2 वो मोड ऑफ वाइब्रेशन यानी एक्स एंड वाई मूव कर सकते, दिस इज मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो जो एनर्जी एसोसिएट होगी इससे वो केबी होगी। तो इन्होंने बताया कि क्लासिकल मैकेनिक्स इक्विपार्टीशन थ्योरम ये बताती है कि हर एक का वाइब्रेशन जो है अगर इसका है, एक का वाइब्रेशन जो है वो बराबर है 8 पाई लैम्डा इसको माइनस 4 डी लैम्डा के बराबर होगा, और टोटल वाइब्रेशन जो हमारी कैलकुलेट करके आएगी वो आएगी u लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू के बी टी 8 पाई लैम्डा इसको 4 डी लैम्डा, इतनी हमारी टोटल वाइब्रेशन की एनर्जी आएगी। ये विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ जो रेले-जीन्स लॉ है ये वैलिड है लॉन्ग वेवलेंथ के लिए, जो मैं ऑलरेडी पहले ड्रॉ कर चुका हूँ। जैसे देखेंगे आप यहाँ पर वेवलेंथ यहाँ वाले लॉस के लिए वैलिड है, मगर जैसे आप इसे शॉर्टर वेवलेंथ में जाते हैं तो ये वैलिड लॉ नहीं रहता।
और इसमें परेशानियाँ नहीं लगती हैं शॉर्ट ऑफ वेवलेंथ के लिए। और आज के लिए बस इतना ही। दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल काइंडली सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक इट सो दैट दे गेट माई वीडियोज़ अपडेट्स। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे उन्हें मेरी आने वाली हर एक वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें और अच्छे से उन्हें फिज़िक्स समझने आती रहे। थैंक यू।